Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you can call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23717117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आपके सवाल भी आज कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा। Thank you. At the stock markets, key indices witness modest gains. Sensex closes near the 53,000 mark. Nifty settles near 15,850 level. Rupee logged all-time low of 77 rupees and 83 paise against the US dollar, and gold prices hover around 50,000 rupees per 10 grams at MCX for June contracts. प्रमुख शेयर सूचकांकों में हल्की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 53,000 और निफ्टी 15,850 के स्तर के करीब हुए बंद। रुपया $1 के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 77 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून अनुबंध वाले सोने के दाम 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहे। सबसे पहले बात शेयर बाजार की। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की तेजी आई। सेंसेक्स 53,000 अंक के करीब, जबकि निफ्टी 15,850 के स्तर के आसपास बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 0.34% की तेजी से 180 अंक बढ़कर 52,974 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.38% की बढ़त से 60 अंक ऊपर 15,842 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। मिड कैप इंडेक्स में 1.51% की बढ़त दर्ज हुई और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.15% की तेजी रही। The Sensex and the Nifty today gained amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed near 53,000 points, while the Nifty at the National Stock Exchange was settled near 15,850 level. The Sensex climbed 180 points or 0.34% to finish at 52,974, while the Nifty added 60 points or 0.38% to end at 15,842. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices outperformed the Sensex. The mid-cap gained 1.51% and the small-cap index ended 1.15% up. In the Sensex pack, 18 companies logged gains while 12 declined. NTPC gained the most as it rose 3.1%, followed by Bajaj Finance, which added 2.4%. SBI climbed 2.3%, Maruti surged 2.1%, and HDFC ended 1.9% up. On the other hand, Ultratech Cement suffered the most as it declined 3%. Asian Paints fell 1.8%, ITC lost 2.1%, and Tech Mahindra ended 1.2% down. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 19 indices climbed. Telecom sector gained the most as it added 2.9%. Realty index rose 2.6%. Auto and utilities sectors surged 2.2% each, and power ended 2.1% up. On the other side, IT index plunged 0.6%, while tech declined 0.5%.
FMCG index fell 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,163 companies gained while 1,240 fell. Shares of 174 companies remained unchanged. And now we are joined by Hasmukh Dedia from Mumbai. जी हसमुख जी सवाल पूछें. गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम. गुड इवनिंग जी. मेरे दो प्रश्न है. एक जो अपना आरबीआई और फेड दोनों ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया है वो कहां तक बढ़ा सकते हैं, मतलब कितनी लेवल तक बढ़ा सकते हैं, पॉइंट नंबर. और क्वेश्चन नंबर 2, जो डॉलर और रूपी का जो वैल्यू इसमें डेली चेंज हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो कितने लेवल तक डॉलर जा सकता है? देखिए, दोनों सवाल आपके काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस तरीके से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है. चैलेंज है सेंट्रल बैंक्स के सामने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का और लिक्विडिटी को सक करना है उनको. इसके लिए ये एक बेसिक फॉर्मूला है. आरबीआई ने बीच में ये 40 बेसिस पॉइंट जो पॉलिसी रेट बढ़ाए, ऐसा कुछ संकेत है कि शायद आरबीआई एक और इस तरह का इंक्रीज पॉलिसी रेट्स में करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ऊपर चला गया है और तमाम सारे जो इंडिकेटर्स हैं या जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के लिए वो अभी बरकरार हैं. जहां तक फेड है, फेड का ये था कि 0.25 करके वो बढ़ाएंगे और यूएस में भी इन्फ्लेशन काफी ऊपर है, रिकॉर्ड लेवल पर है. तो जाहिर सी बात है कि फेड जिस तरीके का भी स्टेप लेता है उसका एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर सीधे इम्पैक्ट आता है. ये एक इस तरीके का लग रहा है. जहां तक आपने कहा कि रुपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कहां तक जाएगा, अभी तो देखिए रुपया रिकॉर्ड पहुंच गया है आज भी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डॉलर ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रहा है. अब स्ट्रांग डॉलर में दो फैक्टर हैं हमारे यहाँ कि हम डिमांड सप्लाई क्या है, क्योंकि हम रुपये को ओपन रखते हैं डिमांड सप्लाई के आधार पर, और बहुत रेयर केस में आरबीआई इंटरवीन करता है. तो ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसे में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ रुपये का जो इस तरीके का जो चेंज आ रहा है उसमें उसके लिए फॉरेक्स को डाल के रुपये को स्ट्रांग करने की जरूरत अभी नहीं है, अभी वो लेवल नहीं आया है. तो ये सब भविष्य की चीजें हैं, बट ये है कि हाँ, डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है और वो एक जो डॉलर इंडेक्स है जिसमें एक बास्केट है ऑफ करेंसीज है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट बाकी करेंसीज पे पड़ रहा है. जी, कोलकाता से अतानु साहा फोन लाइन पर हैं. हेलो. हाँ जी. जी, सवाल पूछिए अपना. हाँ, फ्रॉम कोलकाता, अतानु साहा. माय क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज रिजर्व फंड एंड व्हाई वी नीड करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व and what its current situation? Thank you. Actually, reserve fund is a fund which you keeps always ready if there is an exigency or emergency comes. Basically, it applies both on government as well as on companies also. Companies also keeps. Gold, definitely we have some gold in reserve and many central banks keeps gold as a hedge kind of things. In reserve. If some kind of extreme emergency comes, then central bank use that gold for taking a loan and that kind of thing. So these are the factors, and but it is not necessary that there is a criteria. What is the quantity you need in gold or in forex? We exports gets forex. We get remittances in forex. Companies earn forex. That goes to our forex, and we have a very good comfortable level. All right. We are now joined by Gopal from Mumbai, but before that, let me just remind our friends of our numbers where they can call us to ask questions to my expert in the studio. The numbers are 23314444, 23717106 and 23717117. Calling us from outside Delhi, please do add 011 to these numbers. Yes, Gopal ji, सवाल पूछें. जी नमस्कार मार्केट जी को, हरदीप जी को नमस्कार. मेरे पिछले शनिवार हरदीप जी से बात हुई थी. मेरे जो पीएनबी बैंक का जो इंटरेस्ट कटा है 2021 का, आरबीआई को कंप्लेंट दिया तो आरबीआई ने तो हाथ ऊपर कर दिया, बोला गो टू कोर्ट. तो मेरे हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है.
तो समझ में नहीं आया सर। आप थोड़ा बताएंगे कि इसमें कुछ हो सकता है रिफंड के लिए? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जो मार्केट जो गिरा है उसमें कई स्टॉक कोविड के टाइम जब मार्केट गिरी थी उससे नीचे चले गए हैं, तो क्या फिर से हम लोग इन्वेस्ट करें? हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है सर। देखिए, जब आपने कहा कि आरबीआई को आपने अप्रोच किया, ऑम्बड्समैन को किया, आई थिंक जो क्लैरिफिकेशन वहां से आया उसको उसके साथ ही आपको रखना पड़ेगा, और जो डायरेक्शन उन्होंने दिया डेफिनेटली यू शुड एक्चुअली गो फॉर दैट। अगर आपके लिए फिजिबल है तो उसको उपयोग करना चाहिए आपको। दूसरा, जो ये बात सही है कि स्टॉक्स में काफी वॉलेटिलिटी है और अभी काफी स्टॉक्स में जो उनका प्राइस है वो नीचे आया है, बट अभी का जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और फंडामेंटल्स है और जो मार्केट्स की स्थिति है, इन्फ्लेशन वगैरह है, ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के ही एंट्री करना है और पूरा अपना रिसर्च करके, और जो वाकई अच्छे स्टॉक्स हैं जिसके कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल्स हैं और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है लॉन्ग रन में, उस तरफ के बारे में सोचना चाहिए आपको। जी, ठाणे से गुरुनाथ सवाल करना चाहते हैं। हेलो। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, वीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो हमारे देश में, समझो पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन का जो मैटर हो रहा है, तो मोटा मोटी मतलब मुख्य कारण हमारे देश में जो इन्फ्लेशन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कारण कौन कौन से है, और ये जो अपना ये रुपये और डॉलर का तो ये जो वीकनेस दिख रहा है हमारे रुपये में सर, हमारा तो एक्सपोर्ट वगैरह अभी अच्छा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व भी, फॉरेक्स रिजर्व भी काफी सही तक ठीक है, तो ये कारण क्या है सर इसका? थैंक यू सर। देखिए, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो दुनिया भर उसको फील कर रही है। एक चीज आप देखिए कि एक तो पहले जब कोविड का टाइम आया तो उसमें सप्लाई डिसरप्शन हो गए, वैल्यू एडिशन चेंज डिसरप्ट हो गई। अभी जैसे हम लोग देखें कि चाइना में अभी लॉकडाउन्स हुए तो उनका इकोनॉमी और प्रोडक्शन पे काफी फर्क आया है। तो इसी तरीके से ये सब चल रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी इससे थोड़ा उबर रही थी। तो उसी वक्त आप देखें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, उसने एक बहुत बड़े सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया। उसमें दो चीजें थी, एक तो उसमें था आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें ऑयल है, गैस है, और क्योंकि एक जो सप्लाई करने वाले जो कंट्रीज हैं उसमें वो लिमिटेड है और उसको कंज्यूम करने वाली पूरी दुनिया है। सो वहां डिसरप्शन होने से, सैंक्शंस लगने से रशिया के ऊपर, तो उसका एक इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। दूसरे जो एग्रो कमोडिटीज हैं उनका एक फैक्टर तो ये था कि पिछले साल से ही प्रॉब्लम था और काफी ड्राउट वगैरह की वजह से ब्राजील और इवन यूएस में जो शोन एरिया था वो घट गया था। प्लस ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं लड़ाई का सीन, उसके चलते जो फर्टिलाइजर है उसकी सप्लाई के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया, बिकॉज रशिया और यूक्रेन फर्टिलाइजर की जो आपूर्ति करने वाले दुनिया के बड़े देश हैं। क्योंकि यूक्रेन के अलावा बेलारूस जो है, यहां मैं कहूंगा, और बेलारूस पे पहले सैंक्शन लगा था, उससे दाम बढ़ गए थे फर्टिलाइजर्स के। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लग गए। तो ये फैक्टर है। और जो जैसे फूड ग्रेन है और एडिबल ऑयल है, वो यूक्रेन और रशिया की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है सनफ्लावर ऑयल में, और आपका व्हीट के मार्केट में करीब 25-30% है। वो सप्लाई रुक गई तो उसमें आप देखिए कि सारी कमोडिटीज के दाम ऊपर जाने लगे। तो ये फैक्टर है कि ये इसमें जैसे हमारा कि चलो व्हीट तो हमारे अपना डोमेस्टिक कंट्री का है, लेकिन उसका भी इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट आया। दूसरे एडिबल ऑयल में क्योंकि हम लोग बड़े इंपोर्टर हैं, हम लोग अपनी जरूरत का करीब 2/3 इंपोर्ट करते हैं, तो उससे पहले जैसे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया में प्रोडक्शन घट गया था ड्राउट की वजह से, और 10 ईयर हाई प्राइस चला गया, ऊपर से फिर ये प्रॉब्लम आ गया। तो ये एक तरीके के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी को सक करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब इससे भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों की लागत बढ़ेगी। Right. We're now joined by Jitendra calling us all the way from Khajuraho. जी जितेंद्र, सवाल पूछें।
जी मैम नमस्ते और हरवीर जी को भी नमस्ते। जी नमस्कार। दो क्वेश्चन है मैम। पहला क्वेश्चन है कि डिवेंचर बॉन्ड और डेट मार्केट क्या है, भारत में इनका क्या फ्यूचर है, और दूसरा क्वेश्चन है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसका अमेरिकी इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। Okay, everyone's right about the strong dollar, it seems, in India. देखिए, डिवेंचर तो कंपनीज आपसे बोरो करती हैं और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देती हैं, या फिर बाद में ये ऑप्शन भी होता है कि आप उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब पैसा कंपनीज को चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड कंपनियां भी फ्लोट करती हैं बोरो करने के लिए, सरकारें भी फ्लोट करती हैं, तो जिसको हम लोग सोवरेन बॉन्ड्स कहते हैं। तो उसमें एक लॉन्ग टर्म होता है उसका पीरियड, और इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, बट बिकॉज सोवरेन गारंटी और ये सब होता है। डेट, जाहिर सी बात है, जब डेट तो वो कंपनी हो, सरकारें हो, जब उनको अपनी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट जब होती है उसके लिए ये बाजार में जाती है और डेट जो है वो लेती हैं, और उसके जाहिर सी बात है उसके बदले में आप बॉन्ड इश्यू करें या सर्टिफिकेट इश्यू करें, इट गोज लाइक दैट। डेफिनेटली डॉलर मजबूत होगा तो हमें कई तरीके का उसमें दिक्कत भी होगी, कुछ थोड़े से फायदे भी हैं। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, या हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो करते हैं, उनके लिए फायदा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और क्योंकि सेम डॉलर के लिए उनको यहाँ पर ज्यादा रुपया मिलता है, सो दैट उनका जो कॉस्ट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन हम लोग बड़े इम्पोर्टर भी हैं, उसमें हमारे जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उसका रॉ मटेरियल भी है, कंपोनेंट्स भी हैं, हमारा ऑयल इंपोर्ट भी है, वो फिर हमें उसका असर नेगेटिव आता है, और ये दबाव हमारे ऊपर पड़ता है उसका कि दाम बढ़ जाते हैं चीजों के। जी, पुणे से अनिल फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मार्केट मंत्रा जी। नमस्कार जी। हाँ मैम एंड सर, मैं 55 साल का हूँ, और मैंने जो भी अभी तक की पूंजी थी वो अभी 1 साल पहले तक फिक्स डिपॉजिट में रखी थी। बाद में मेरे लड़का जो है उसको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा ज्ञान है, तो उसने बताया कि बाबा मतलब कि आप जो भी सेविंग्स है वो एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड और स्टॉक में। जी आपका, हाँ जी, सवाल क्या है जी बताएं। हाँ, तो सब जो मैंने एफडी का जो है ना वो पैसा म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जो म्यूचुअल फंड में टेक्नोलॉजी फंड में दिया था वो तो बहुत डाउन हुआ है, उसमें तो मेरा नुकसान हुआ है, और जो स्मॉल कैप में जो पैसे रखे थे वो थोड़ा सा है, उसमें प्रॉफिट हुआ है थोड़ा, तो अभी तक तो है, और शेयर में भी जो फायदा होने के बजाय अभी तो 20% में डाउन हूँ। तो मुझे कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये तो आपके लिए काफी संवेदनशील बात है, क्योंकि आपने जो एज में जहां आप हैं और आपने अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए जो है ये सेविंग्स किया। एक तो ये फैक्ट है कि आपको कभी भी सारे सेविंग्स आपके स्टॉक्स में नहीं लगाने चाहिए, ये एक कहा जाता है, क्योंकि हमें जो एक बास्केट हमारा है इन्वेस्टमेंट का, हमें अलग अलग जगह लगाना चाहिए। आपको कुछ न कुछ जो है एफडीज में, पीपीएफ वगैरह में जरूर रखना चाहिए था, जिससे कि वहां पर आपका लॉस तो नहीं होगा, इनकम जरूर थोड़ी कम होगी, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो नीचे नहीं जाएगा। दूसरे ये है कि अब आपने जहां लगाया है कि अगर आपको लगता है कि आप पैसा निकालना चाहते हैं, जहां आपको प्रॉफिट है उसको आप अपना सेफ इन्वेस्टमेंट को बाहर कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो म्यूचुअल फंड और दूसरे स्टॉक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म का अगर आपके पास एपेटाइट है, आप लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं, तो इसमें संभावना है कि आपका जो नुकसान है उससे आप रिकवर हो जाएं, लेकिन इसमें समय लग सकता है, तो उसके लिए आपको दीर्घ अवधि के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। As they say, don't put all your eggs in one basket, so you have a multiple portfolio. Right, we are now joined by Anil Ahuja calling us from Delhi. जी अनिल जी, सवाल पूछें जी। गुड इवनिंग टीम। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो उनके जो प्राइस इंक्रीज है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे जिनको जीएसटी में ला सकते हैं, तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, वो क्यों नहीं ला रहे? कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हमारा तो 30-40% कॉस्ट बढ़ गया है ट्रांसपोर्ट का। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस काफी बढ़े हैं, और
सभी की जेब पर उसका सीधा असर आया है। जो लोग, जो कंज्यूमर उसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों के ऊपर उसका असर आया है। जीएसटी को लेकर के जो जीएसटी काउंसिल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स मेंबर हैं उनके बीच में जब तक इसके ऊपर सहमति नहीं बनेगी तब तक ये जीएसटी में नहीं आ सकते। अभी उसमें 2 स्ट्रक्चर है, एक्साइज का स्ट्रक्चर है, कस्टम का है, और आपका वैल्यू एडिड टैक्स है जो कि स्टेट लगाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सो ये जरूर आम सहमति है कि कहीं न कहीं जो टैक्सेस हैं उनको कुछ रेशनलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ राहत मिले। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स के अपने जो रिसोर्सेज हैं वो, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है एक्सपेंडिचर की, वो कितने सीमा तक उनको अलाउ करती है इस बारे में। तो जहां तक जीएसटी का सवाल है उसमें आने का, अभी तो मुझे कोई नियर फ्यूचर में तो ऐसा कोई संभावना नहीं दिखती है। जी, देहरादून से तरुण सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। Hi, Tarun this side from Delhi. जी, सवाल पूछिए। So since inflation is a hot topic, so I am asking a question related to that. जो inflation है, समझ आ रहा है, that is because of the supply side constraint, not demand driven. Then RBI is hiking the rate. How will it help this problem and challenges to get resolved? Because अगर CPI inflation अगर हम देखें तो food है, oil है या vegetable oil है, so supply side constraint तो as it is ही रहने वाले हैं। So if our expert can throw some light on it कि क्या लोग कम खाना स्टार्ट करेंगे अगर इन्फ्लेशन RBI रेट बढ़ाएगा, या ट्रांसपोर्टेशन में कम ऑयल लगना स्टार्ट होगा? जी जी। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वाकई एक बड़ा चैलेंज है, और जो इकोनॉमिक्स के जो उसके लिए जो फॉर्मूला कहें, जो प्रिंसिपल्स है, उसमें यही होता है कि एक बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन का मनी सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से होता है। इसलिए जो पहला स्टेप है सेंट्रल बैंक, वो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है कि जो मार्केट में जो मुद्रा का चलन है वो कम हो जाए और ये पैसा वापस आरबीआई में चला जाए। इसलिए जब आप देखेंगे कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो दोनों में इंक्रीज होता है कि रेपो के अगर आप बैंक से बोरो करें तो उनको लगे कि हम महंगा ले रहे हैं तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाए उसमें, और उनके पास अगर सरप्लस है तो वो वापस दे दें उसमें और उनको उसमें कुछ कमाई भी हो जाती है। सो ये तो एक ये आप कैश 22 टाइप का सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कुछ कीमतें भी बढ़ती हैं और जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों के बीच में आपको चुनना होता है कि आपको ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल उनके बीच में संतुलन बनाने के लिए रिजर्व बैंक और जो पॉलिसी कमेटी वगैरह है वो सब अपना कोशिश करते हैं, बट उपाय तो यही है। Some amount of inflation is important. We know what happened in Sri Lanka. So some amount is important for growth, but it's a tightrope walk. That's why we have that 4% plus minus 2 is the tolerance level, and RBI has given to the government that we will keep inflation around that. So उस केस में RBI के सामने भी चैलेंज है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो उसमें मेंटेन रखें। सो देन फिर वो गवर्नमेंट से उस तरह का स्टेप लेने की बात करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, बट डेफिनेटली हायर इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। और अब बात रुपए के प्रदर्शन की। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 38 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 77 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06% की मंदी से 104.5 पर कारोबार कर रहा था। और ये जो हरवीर जी जानना चाहेंगे आपसे कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आज बंद हुआ है, ये हमारे एक्सपोर्ट की दृष्टि से, निर्यात की दृष्टि से क्या एक सकारात्मक खबर है? And also, does it provide us a buffer because we have had unprecedented exports? I mean, are we still comfortable with this high value? Actually, देखिए अभी वाकई हमारे एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन को पार करके गए और वो एक बहुत ऊंचा लेवल है। हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। सो इन दैट सेंस अप टू सम एक्सटेंट
depreciation of rupee is good for export, not a very negative thing. That's why RBI is still waiting. So, कोई उस तरीके का इंटरवेंशन अभी नहीं कर रहा सेंट्रल बैंक। बात एशियाई बाजारों की। चीन से प्रत्याशित कमजोर आर्थिक आंकड़े प्राप्त होने से आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ने की आशंकाओं के बीच अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। चीन के कई शहरों में कोविड संक्रमण में वृद्धि के बाद लॉकडाउन के कारण अप्रैल माह के खुदरा बिक्री में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन में भी 2.9% की कमी आई है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज दोनों 0.3% के नुकसान के साथ बंद हुए। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% और जापान का निकेई 0.5% के लाभ में रहे। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में कोई कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों पर नजर डालें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.1% की मामूली गिरावट दिखा रहा था। फ्रांस का कैक 0.4% फिसल गया और जर्मनी का डेक्स 0.7% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Brief comment on the Asian markets, Hazir. Actually, all the markets are in a precaution mode. In fact, they are cautious because still fundamentals and situation is not very favorable. Right. Global crude oil prices today fell around 1% as traders booked profits after prices increased in the previous session. In intraday trade, Brent crude was trading at around $110.60 per barrel, while WTI crude prices were at $109.70 per barrel. जी, और बात गोल्ड की करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आज 175 रुपए महंगा होकर 50,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 815 रुपए की तेजी से 60,145 रुपए प्रति किलो के स्तर पर जा पहुंची। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,805 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी $21.70 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। And now we are joined by Krishnamurthy from Chennai. Ji, Krishnamurthy ji, you may ask a question quickly because we are a little short of time. Yeah, though our exports have gone up, our trade deficit has gone is widened, and with the increasing this thing dollar rupee depreciating rupee, our foreign exchange reserves will go down. A short comment from you, please. Definitely, this depreciation of rupee is not fully good for us. It will hurt us on basically it will increase the trade deficit as well as the cost of imports will go high. हरवीर जी, गोल्ड की बात करें तो आज 175 रुपए महंगा हुआ है और 50,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया MCX में गोल्ड। जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात हो रही है, ऐसे में क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है सोने में? एक्चुअली देखिए, गोल्ड का पहले काफी ज्यादा दाम हुआ था। अभी भी गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए लोग जा रहे होंगे, मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल रूटीन काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ऑलराइट, एंड looking at the oil prices, what do you have to say about the fact that the oil prices fell around 1% today? I think this economic activities has gone down in China, and investors also looking for profit booking into oil. So there is a little bit slowing down of the prices. It is good for us because we import a lot of oil for our requirement. Any hope of a quick comment of the prices increasing or decreasing? Any speculation? So it will depend on, because still European Union wants to reduce the import from Russia of this crude. जी, हरवीर जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Now, before we close, friends, is a reminder of the headlines. At the stock markets, key indices witnessed modest gains. Sensex closes near the 53,000 mark. Nifty settles near 15,850 level. Rupee logs all-time low of 77 rupees and 83 paise against the US dollar. And gold prices hover around 50,000 rupees per 10 grams at the MCX for June contracts. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and my co-anchor Vishal Sharma signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.